Good morning students. Now in today's lecture we will see next point, time period of a satellite. Time period of satellite, that is denoted by capital T, periodic time. So what is the definition or meaning of time period of satellite? The time taken by the satellite to complete one revolution around the planet is called time period of satellite. देखिए जैसे यहाँ पर एक अर्थ है, this is earth, center of the earth, okay, radius of earth is capital R, and let us consider a satellite of mass small m, which is situated at height h above the earth's surface, and it performs circular motion around the earth. That means it is moving with critical velocity. So that critical velocity is Vc and it is tangent to the orbital path. Okay, so if satellite of mass m is revolving around the earth in circular path with critical velocity Vc, which is at height h above the earth surface, तो इस सैटेलाइट के लिए हमें टाइम पीरियड निकालना है. सो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट? द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द प्लैनेट और अर्थ हियर. ओके, सो डेफिनेशन देखिए यहाँ पर, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट one revolution around the earth or around the planet is called time period of satellite. So time taken by satellite to complete one revolution around the planet और अर्थ इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. ठीक है, तो इसके लिए हमें एक्सप्रेशंस तैयार करने हैं स्टूडेंट. नो वी नो दैट जनरल फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. नाउ इन वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, देखिए in one revolution the time taken by satellite to complete one revolution is known as time period. So we can write instead of time period. Okay, it is equal to, now how much distance that satellite cover in one revolution? Let it is starting from this point. Okay, so it covers equal to the circumference of the circular path. मतलब in one revolution how much distance covered by satellite equal to the distance of circumference. So we can write here circumference of circular path divided by, now the velocity with which the satellite revolves around the earth in circular path is known as critical velocity or critical speed. So speed is nothing but critical speed. ये है ना फॉर्मूला. टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी. ओके, इट इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. नाउ अब यहाँ पर देखिए इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? लेट इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ ना प्लस हाइट above which it is revolving around the earth. So this is h. So r plus h is the radius of orbit. So radius of circular path कितनी होगी? स्मॉल r, that is r plus h. तो circumference कितना होगा यहाँ पर? It is equal to 2 pi r divided by, now critical velocity का सिंबल होता है vc, critical velocity vc. Okay, now what is critical velocity? We know that general formula for critical velocity
it is equal to root gm divided by r, where g gravitational constant, m mass of the planet, now here mass of the earth, and r is radius of orbit. ओके अगर ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम, t इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय वी सी, मतलब रूट जी एम डिवाइडेड बाय r. ओके नाउ इट इज इक्वल टू 2 पाई r इनटू, अब इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब रूट r डिवाइडेड बाय जी एम. इस तरह से फॉर्मूला होगा स्टूडेंट. ओके नाउ t इज इक्वल टू 2 पाई, देखिए अगर इस r को हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाते हैं तो r स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन रूट r स्क्वायर इंटू r डिवाइडेड बाय जी एम. देखिए 2 पाई लिखा है यहाँ पर. ओके r को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाते हैं तो ये क्या होगा, r स्क्वायर होगा इनटू दिस r अपॉन जी एम. सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट r square into r, that is r cube divided by gm. This is equation number 1, and that gives the expression for time period of satellite. And t is equal to 2 pi root, अब small r मतलब radius of orbit, that is radius of earth plus height above the earth surface. So we can write r plus h bracket cube divided by gm. So both equations are same. So this equation gives the periodic time of satellite. So this expression gives time period of satellite. Okay. देखिए t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r प्लस एच क्यूब, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस एच क्यूब. सो वी कैन एस्टिमेट दैट पीरियोडिक टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस. मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए जैसे सैटेलाइट की हाइट इंक्रीज होगी स्टूडेंट, तो वहाँ पर पीरियोडिक टाइम भी इंक्रीज होगा. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द पीरियोडिक टाइम ऑफ द सैटेलाइट. ओके नाउ उसके बाद देखिए कि इस इक्वेशन में 2 पाई g and m are constants because 2 pi constant है, g gravitational constant 6.67 10⁻11, m mass of any planet remains same, दैट इज़ मास ऑफ अर्थ. फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 × 10⁻24 kg. सो ये टर्म्स यहाँ पर कांस्टेंट है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट r क्यूब, ये इक्वेशन हमें मिलता है ना स्टूडेंट, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट r क्यूब. या फिर अगर हम इसका स्क्वायर भी लेते हैं, देखिए स्क्वेयरिंग ऑन इक्वेशन 1, देखिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, क्या होगा इसका 4 पाई स्क्वायर इंटू r क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम. ओके अब यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम is also constant. इस तरह से भी हम प्रूव कर सकते हैं. इसका मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम कॉन्स्टेंट हो गया. सो देयरफॉर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ये एक रिलेशन यहाँ पर प्रूव होता है. मतलब इस स्टेप से भी हम ये ऑप्टेन कर सकते हैं ना इजीली, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. तो टी का स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट साइन निकल जाएगा, सिर्फ आर क्यूब. ओके टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. इसका मतलब क्या होता है कि टी स्क्वायर मतलब दैट इज स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज
directly proportional to the t square directly proportional to the cube of radius of orbit with which the satellite revolves around the planet. So t square directly proportional to r cube, that means square of time period of satellite is directly proportional to cube of radius of orbit. Now this statement is nothing but the Kepler's third law of planetary motion, that is Kepler's third law of planetary motion, that is also known as law of period. देखिए केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन मतलब लॉ ऑफ पीरियड का ये प्रूफ भी होगा ना यहाँ पर. सो इन दिस वे वी कैन प्रूव टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इजंट इट? सो दिस इज ऑल्सो प्रूफ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, शो दैट स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब या फिर इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो स्टेटमेंट लिखना और ये पूरा प्रूव करना है यहाँ पर, राइट? सो दिस इज द प्रूफ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. नो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, यहाँ पर देखिए कि यश हाइट पर सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग है, तो इस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? gh. नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देखिए एट अल्टीट्यूड h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? दैट इज gh इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर, या फिर gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r मतलब क्या होता है? r प्लस h ब्रैकेट स्क्वेयर. ओके, देखिए यहाँ पर gm के लिए इक्वेशन क्या होगा? gm इज इक्वल टू gh इंटू दिस r स्क्वेयर, या फिर gh इंटू दिस स्मॉल r स्क्वेयर मतलब r प्लस h ब्रैकेट स्क्वेयर. अगर हम gm की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, ओके, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट r क्यूब डिवाइडेड बाय gm की जगह पर क्या लिखना है? gh into this r square. Okay, so therefore t is equal to 2 pi root. देखिए r square इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट r is remaining, r divided by gh, या फिर t is equal to 2 pi root r मतलब कैपिटल R प्लस h, that is radius of planet plus height above the surface of the planet, या फिर इन दिस केस रेडियस ऑफ अर्थ, ओके, प्लस हाइट अपॉन gh. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर गिव्स इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, एंड इक्वेशन 2 गिव्स इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अल्टीट्यूड h अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. तो ये सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट यहाँ पर, ओके. नाउ सी फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर एक कंडीशन हम यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट, कौन सी कंडीशन? इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग very close to the earth surface, ओके, या फिर वेरी क्लोज टू द प्लैनेट सरफेस, तो फिर क्या होगा यहाँ पर? देयरफॉर हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द प्लैनेट सरफेस या अर्थ सरफेस इज नेग्लिजिबल, दैट इज r प्लस यश कैन बी रिटन एज r, है ना? अगर यश हम निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग
वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो ऐसे केस में हाइट निग्लिजिबल रहेगी कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द अर्थ। सो आर प्लस एच कैन बी रिटन एज आर। सो इक्वेशन क्या होगा फिर, ये इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर प्लस एच के जगह पर क्या लिखना है, हमें सिर्फ r लिखना है। सो आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम, आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। ओके, नो नियर टू द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, g इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। देयरफॉर जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर। तो यही इक्वेशन क्या होगा फिर यहाँ पर, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर क्यूब डिवाइडेड बाय, इंस्टेड ऑफ जी एम नाउ वी कैन राइट जी आर स्क्वेयर। ओके, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई रूट, अब ये आर स्क्वेयर क्यूब के साथ कैंसिल होगा, r डिवाइडेड बाय g। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे स्टूडेंट। देखिए t इज इक्वल 2 पाई रूट आर क्यूब बाय जी एम। ओके, नाउ दिस इक्वेशन इज फॉर द सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। अगर हम g की वैल्यू रखते हैं जी एम बाय आर स्क्वेयर या जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, और एक t इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर बाय जी, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर टू द अर्थ सरफेस या नियर टू द एनी सैटेलाइट सरफेस। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर। अब इसमें देखिए कि 2 पाई कांस्टेंट है, r फॉर एग्जांपल अर्थ मान लेते हैं हम, यहाँ पर प्लैनेट है, तो रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, और g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस या नियर टू द अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब ये कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस शुड बी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होगा, और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, देखिए फॉर अर्थ रेडियस कितनी है यहाँ पर 6400 किलोमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला इजी रहेगा, t इज इक्वल 2 पाई रूट आर क्यूब बाई जी एम, या फिर t इज इक्वल 2 पाई रूट आर बाई जी। तो ये वाला फॉर्मूला इजी रहेगा यहाँ पर। ओके, और अगर हम g की वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट, g इज इक्वल टू इतना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा उस सैटेलाइट का, द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 देखिए यहाँ पर t इज इक्वल 2 पाई रूट आर क्यूब बाई जी एम। कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ प्लैनेट। ओके, हाँ, लेकिन सैटेलाइट का मास हमने कितना कंसिडर किया था, स्मॉल m, लेकिन ये स्मॉल m टर्म है कि यहाँ पर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, स्मॉल m कहीं पर भी नहीं। इसका मतलब पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट, है ना। फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर एक सैटेलाइट है कुछ हाइट पर, ओके, जिसका मास है 10 किलोग्राम, और उसी ऑर्बिट में और एक सैटेलाइट है जिसका मास है 100 किलोग्राम, तो दोनों के लिए टाइम पीरियड एक ही रहेगा स्टूडेंट, बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट। तो देखिए अगर एक सैटेलाइट यहाँ पर ले रहे हैं हम, इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, उसके लिए पीरियोडिक टाइम निकालते हैं हम। ओके, तो देखिए कितना आता है ये, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, 2 पाई रूट आर बाय जी, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ओके, रूट आर कितना होगा यहाँ पर 6.4 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 9.8 जी की वैल्यू। ओके, नाउ t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 दैट इज 6.28 इंटू रूट, देखिए यहाँ पर 64 डिवाइडेड बाय
98 लिख सकते हैं हम। अगर एक डेसिमल पॉइंट राइट साइड एक डिजिट से हम शिफ्ट करते हैं तो ये भी डिजिट यहाँ पर मतलब डेसिमल पॉइंट एक डिजिट से शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट। तो 64/98 इस तरह से हम लिख सकते हैं इंटू 10⁶। नाउ दिस इज 6.28। अब देखिए रूट के अंदर 64 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 98 मतलब 2 इंटू 49 इस तरह से लिख सकते हैं ना। 2 इंटू 49 दैट इज 98। ओके, और t इज इक्वल टू 6.28 इंटू, अब देखिए यहाँ पर 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8 होगा स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, बराबर 7 इंटू 1/√2। ओके, इंटू 10⁶ का स्क्वायर रूट क्या होगा 10⁵। ओके, अब इसको कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। देखिए 6.28 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7, 6.28 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7 इंटू √2 की वैल्यू पता है ना आपको 1.414 होती है इंटू 10⁻³ अगर इसको कैलकुलेट करते स्टूडेंट्स हम तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिए। तो इसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट 5.705 इंटू 10⁻³। ओके, अब इसका यूनिट क्या होगा सेकंड होगा, इसका यूनिट होगा सेकंड। दैट मीन्स t इज इक्वल टू, ठीक है 5.705 इंटू 10⁻³ है, मतलब ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो ये होगा 5705 सेकंड्स। कितना 5705 सेकंड इतना वक्त लगेगा सैटेलाइट को टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, फॉर विच सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। अब इसको मिनट में अगर कन्वर्ट करना है हमें तो डिवाइड बाय 60 करना होगा या मल्टीप्लाइड बाय 60। सेकंड का कन्वर्जन मिनट में करना है तो डिवाइड बाय 60, तो 5705 डिवाइडेड बाय 60 तो ये कितना आता है स्टूडेंट, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 85 मिनट्स आ जाता है। कितना 85 मिनट। इसका मतलब सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त लगता है दैट इज 85 मिनट्स या फिर 5705 सेकंड्स। ओके, 85 मिनट्स लगते हैं फॉर द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। अब इंडिपेंडेंट ऑफ मास मतलब क्या कि अगर सैटेलाइट है हमारे पास 10 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम और व्हाटएवर इट मे बी। ओके, so if they are orbiting very close to the earth surface, all satellites takes equal time duration, that is 85 minutes to complete one revolution around the earth. So this is independent of mass. Okay, so time period of satellite, ये equation number 1 in terms of mass of the planet or mass of earth. Second in terms of acceleration due to gravity at altitude h above the earth surface. और एक केस हमने यहाँ पर डिस्कस किया जिसमें सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना आता है 5705 सेकंड या फिर 85 मिनट्स अराउंड। ओके।